Hello children, myself Karunesh Bhadoria. Welcome to physics class. Children, in physics chapter number 3, current electricity. Today I am taking very important topic. Yes, Wheatstone bridge. Wheatstone bridge is a very important topic in physics. So today's topic, what is Wheatstone bridge? Children, if we talk about Wheatstone bridge, this principle is given by a British physicist Wheatstone in 1843. In this principle, four resistances R1, R2, R3 or R4 or PQRS like me, four resistances are connected in series and they form a quadrilateral ABCD, and a cell is connected between point A and C, and a galvanometer is connected between B and D, and these four resistances are adjusted such that no current is flow through galvanometer. In that case, this arrangement, this system is said to be balanced, and in balancing condition the ratio of P upon Q is equals to the ratio of R upon S. This is Wheatstone bridge principle. See the diagram. Four resistances. First resistance, second, third, fourth. Four resistances like this P, Q, R, S are connecting in series and form a quadrilateral. A cell is connecting, this is A point, B point, C point and D, plus minus. Look here, four resistances P, Q, R, S are connecting in series combination and form a quadrilateral A, B, C and D. A cell is connecting between point A and C, opposing point A and C. This is cell. Okay. A galvanometer is connecting between point B and D. This is galvanometer. Okay. So this is the diagram. I current is flowing through here. At this point, suppose this is I1 current, I1, and this is I2 current. Here IG current through galvanometer. So in this branch, this current will be I1 minus IG. Okay. Here I2, and in this branch will be I2 plus IG. Okay. This is I. So this is the diagram. So write down here. This principle is suggested by, note down this principle is suggested by a British physicist Wheatstone in 1843. Okay. In this principle,
four resistances are connecting in series combination, in series and form a quadrilateral. Okay, quadrilateral ABCD, A, B, C and D. A cell is connecting between the point A and C, and a cell is connecting between points A and B, A and C, not B. Okay, here look here, cell, this is cell, A point and C point, between point A and C cell is connecting. Okay, and a galvanometer, this galvanometer is connecting between point, diagonal point B and D, and a galvanometer is connecting between points, कौन से पॉइंट है, B and D. Okay, so this is the construction. Now these four resistances are so adjusted, no current is flow through this branch, or we can say through this galvanometer. These four resistances are so adjusted that no current, यहाँ लिखता हूँ, that उसके बाद यहाँ देखो, no current flow through galvanometer. Okay, no current is flow through galvanometer. This is called balancing condition of this Wheatstone bridge. This is its balancing condition. When no current is flow through this galvanometer, this is called its balancing condition. And in balancing condition, the ratio of P and Q is equals to the ratio of R and S. And in this condition, P by Q is equals to R by S. This is Wheatstone bridge, principle of Wheatstone bridge. क्या कह रहा है प्रिंसिपल? When four resistances are adjusted such that if no current is flow through this galvanometer, in that case this condition is called balancing condition. So we can say that in balancing condition of Wheatstone bridge, the ratio of this resistance and this resistance means P and Q, the ratio of P and Q, this is P upon Q, will be equals to the ratio of these two resistances R and S, R by S. So P upon Q is equals to R upon S. This is the condition of Wheatstone bridge. अगर आप बैक से बोलें तो ऐसे कह सकते हैं कि इन Wheatstone bridge if condition is satisfied, P upon Q equals to R upon S, it means this bridge is
बैलेंस्ड, और अगर ये ब्रिज बैलेंस्ड है, इन दैट केस वी कैन से दैट नो करंट इज फ्लो थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर। ये आप है ना न्यूमेरिकल में देखेंगे कहीं ना कहीं कि बहुत से रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, अगर कहीं व्हीटस्टोन ब्रिज अप्लाई हो रहा है उस सर्किट में, तो बीच के जहाँ रेजिस्टेंस कोई ऐसा है जिसमें करंट फ्लो नहीं होगी, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज वहाँ अप्लाई हो रहा है, कुछ उसमें ऐसे रेजिस्टेंस होंगे जिसमें करंट का फ्लो नहीं हो सकता है, जैसे यहाँ पे इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा अगर इसका रेशियो एंड इसका रेशियो सेम हो। ओके, सो दिस इज द व्हीटस्टोन ब्रिज। क्लियर? क्या इसमें बताया मैंने आपको कि सबसे पहले ये प्रिंसिपल जो है किसने दिया था? व्हीटस्टोन ने दिया था, उन्हीं के नाम से है, ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे। 1843 में ब्रिटिश फिजिसिस्ट व्हीटस्टोन ने ये प्रिंसिपल आपको दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल 4 रेजिस्टेंसेस हमने लिए, कुछ बुक्स में R1, R2, R3, R4 ले लेते हैं, आप PQRS भी ले सकते हैं एज यू चॉइस। 4 रेजिस्टेंसेस PQRS आर कनेक्टिंग इन सीरीज एंड फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल, सीरीज में कनेक्ट करके फिर एक क्वाड्रिलेटर बनेगा वहाँ पे, जैसे ये है, पहले कनेक्ट किया देन एक क्वाड्रिलेटर ABCD बना दिया, और इसमें अपोजिट जो डायगोनल्स हैं ANC उनसे एक सेल कनेक्ट कर दिया एंड दूसरे डायगोनल्स उसमें एक गैल्वेनोमीटर अप्लाई कर दिया। राइट, सो ये इसका फॉर्मेशन तैयार हो गया किसका? व्हीटस्टोन ब्रिज का। नाउ इफ दीज रेजिस्टेंसेस आर एडजस्टेड सच दैट इफ नो करंट इज फ्लो थ्रू गैल्वेनोमीटर, बीच में जो गैल्वेनोमीटर है ना इसमें करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, और जब इसमें करंट का फ्लो नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे कि दिस व्हीटस्टोन ब्रिज इज इन इट्स बैलेंसिंग कंडीशन, बैलेंसिंग पोजीशन, ये बैलेंस्ड है अगर इसमें करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, और ये बैलेंस्ड है, इन दैट केस रेशियो ऑफ P and Q इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ R and S, दैट इज P upon Q इक्वल्स टू R upon S। ओके, अब हम इस व्हीटस्टोन ब्रिज का डेरिवेशन डिराइव करके बताएंगे कि ये रेशियो कैसे आता है, इसमें किरचॉफ्स लॉ का यूज़ करते हुए ये रेशियो निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन दिस, yes, have you noted? Now derive this principle, Wheatstone principle, with the help of Kirchhoff's law। किरचॉफ लॉ से आप इस प्रिंसिपल को डिराइव भी कर सकते हैं कि ये P अपॉन बैलेंसिंग कंडीशन में ये जो है P, लेकिन बैलेंसिंग कंडीशन में ही ये रेशियो आएगा, अगर कंडीशन इज नॉट इन बैलेंसिंग फॉर्म देन P अपॉन Q इज नॉट इक्वल्स टू R अपॉन S होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, सो इन बैलेंसिंग कंडीशन में किरचॉफ्स लॉ यूज़ करके आप इसको, इस कंडीशन को ला सकते हैं। देखिए कैसे आती है ये, इससे किरचॉफ्स लॉ का भी प्रैक्टिस होगी। अभी पिछले वीडियो में मैंने 2 न्यूमेरिकल्स दिए थे किरचॉफ्स लॉ के, वेरी इंपॉर्टेंट है किरचॉफ्स लॉ, एग्ज़ाम में इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। सो देखिए यहाँ पे एक बार देखें जस्ट, दिस इज द सेल, I current is flowing through here, at this point current, look here, at this point, at point A current is distributed, I1 current is flowing through this branch, okay, and remaining current, suppose I current is flowing from here, so I1 in this branch, remaining current means, नहीं मैंने I2 माना, चलो I2 करंट यहाँ से इधर आ रही है, तो I की जो वैल्यू होगी I1 प्लस I2 की इक्वल हो जाएगी। इस ब्रांच में फ्लोइंग करंट I1 एंड इस ब्रांच में फ्लोइंग करंट I2। यहाँ पे आते हैं, एट पॉइंट B I1 करंट यहाँ तक आ गई। अब इस ब्रांच में IG करंट मैंने नाम दे दिया, IG करंट इन दिस ब्रांच। रिमेनिंग करंट कितनी बचेगी? I1 यहाँ थी, IG इधर आ गई, तो I1 माइनस IG करंट थ्रू दिस ब्रांच, BC ब्रांच, ओके, यहाँ तक आ गए। एंड इन दिस ब्रांच I2 करंट, और उधर से IG आ रही थी, तो दोनों का सम I2 प्लस IG ये इधर जाएगी और दोनों मिल करके वापस I में कन्वर्ट हो जाएंगी, राइट। तो दिस इज द डायग्राम। नाउ वी कैन अप्लाई किरचॉफ्स लॉ। तो हाँ, एक हेडिंग डाल सकते हैं आप, डिराइव व्हीटस्टोन ब्रिज, प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज।
बाय किरचॉफ्स लॉ है ना। किरचॉफ्स लॉ से आप व्हीटस्टोन विस को डिराइव कीजिए, वो प्रिंसिपल लाना P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। सो आई एम टेकिंग दिस लूप A B D A, ये लूप मैं ले रहा हूँ यूजिंग लूप, क्या नाम लूप का, A B D एंड A, लूप A B D एंड A, दिस इज द लूप। देखिए लूप इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन ऑफ पाथ, किरचॉफ्स लॉ की प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो पाथ कौन सा आप ले रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर ये कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं है तो ये क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं हो सकते हैं। सो मैंने यहाँ पाथ ही लिया, दिस इज द पाथ, ये क्लॉकवाइज पाथ में ले रहा हूँ, राइट। दिस इज द पाथ, क्लॉकवाइज पाथ। और इसमें मैंने साइन कन्वेंशन आपको दिया था कि द डायरेक्शन ऑफ पाथ इज फ्रॉम माइनस टर्मिनल टू प्लस टर्मिनल, देन EMF ऑफ सेल विल बी पॉजिटिव। सेकेंड साइड में RHS में इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड पाथ इज सिमिलर देन इट विल बी पॉजिटिव। मैंने वहाँ नेगेटिव लिखाया था, अगर आप उसी साइड में लिखेंगे इक्वल्स टू की दूसरी साइड में लिखेंगे RHS में तो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। सो इन दिस लूप देयर इज नो सेल। यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, चलिए। डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम A टू B, पाथ इज फ्रॉम A टू B, सेम है दोनों तो पॉजिटिव हो जाएगा। दिस इज I1 एंड P, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ आ गए, अब यहाँ आते हैं। डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज नीचे की तरफ है और IG भी नीचे की तरफ है, सो दिस इज प्लस IG इंटू G। पोटेंशियल लेते हैं ना तो करंट इंटू रेजिस्टेंस, ये पोटेंशियल हो जाएगा, दिस पोटेंशियल, ओके। अब यहाँ से आते हैं इधर को, डायरेक्शन इसमें करंट का डायरेक्शन है A टू D, पाथ D टू A, अपोजिट है ये, राइट। तो माइनस हो जाएगा I2 इंटू R, दिस इज माइनस I2 इंटू R इक्वल्स टू 0। देखिए ध्यान से देखना इस चीज़ को, A टू B, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम A टू B, path is also from A to B, so both are same, so this will be I1 into P in positive sign, I1 into P, okay. Now from B to D, डायरेक्शन इज B to D, करंट का डायरेक्शन भी B to D है तो दोनों पॉजिटिव होंगे एंड दिस विल बी IG into G, IG is the current and G is the resistance of galvanometer, right. And from D to A, direction is from D to A, but current का direction है from A to D, both are different, so this will be minus I2R, साइन चेंज हो जाएगा, right, equals to 0। हमने कहा था बैलेंसिंग कंडीशन होनी चाहिए, तो बैलेंसिंग कंडीशन में हमने क्या बोला था, इन दिस ब्रांच देयर विल बी नो करंट ऑन बैलेंसिंग कंडीशन, IG इक्वल्स टू 0, बीच वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं होगी, इन दैट केस IG इक्वल्स टू 0, सो पुटिंग IG इक्वल्स टू 0 हियर, क्या हो जाएगा ये I1 P प्लस 0 इंटू समथिंग 0, इधर भेज दीजिए I2 R, सो I1 P इज इक्वल्स टू I2 इंटू R, नंबर 1। फ्रॉम लूप A B D A, फर्स्ट लूप से ये रिलेशन आ गया I1 P इक्वल्स टू I2 R, क्लियर। नाउ सेकेंड लूप लेते हैं, ये ले लेते हैं B C D B, यूजिंग लूप, क्या नाम है, B C D B, B C D and B,
दिस इज द डायरेक्शन, डायरेक्शन लूप अगर ये डायरेक्शन देखते हैं बी सी डी, तो ये डायरेक्शन हो गया। मैंने कहा ना डायरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन अगर आपने नहीं ध्यान दिया तो ये कभी भी सही नहीं हो सकता है, साइन में हमेशा मिस्टेक आएगी। सो अब डायरेक्शन आप ये भी ले सकते थे बी डी सी बी, ये डायरेक्शन भी ले सकते हैं, उसके हिसाब से साइन आपके चेंज हो जाएंगे। साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना पड़ेगा, डायरेक्शन के हिसाब से साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे, फाइनल आंसर आपका सेम आ जाएगा। सो आई एम टेकिंग दिस लूप बी सी डी बी, बी सी डी बी, डायरेक्शन इज clockwise, this is clockwise direction. So applying Kirchhoff's law from B to C, direction is from B to C and current का direction भी इसमें ही है, तो दोनों प्लस में रहेंगे। Q into this current, और ये करंट क्या है I1 माइनस G, तो ये होना चाहिए Q into current is I1 माइनस IG। ध्यान से देखना, I1 माइनस IG इज द करेंट, दिस इज द करेंट एंड रेजिस्टेंस इज Q, सो रेजिस्टेंस इनटू करंट, तब वोल्टेज बनेगा, रेजिस्टेंस इनटू करंट, दिस इज वोल्टेज। नाउ इन दिस ब्रांच डायरेक्शन इज C to D, क्लॉकवाइज C to D, एंड करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो माइनस हो जाएगा, माइनस रेजिस्टेंस इज S एंड करंट, what is the current I2 plus IG, this is I2 plus IG, क्लियर। ये हो गया ये। अब आइए इसमें डायरेक्शन इज ये क्लॉकवाइज है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ओके, और करंट का नीचे की तरफ है तो माइनस हो जाएगा, IG माइनस करंट इज IG एंड गैल्वेनोमीटर का G, दिस इक्वल्स टू 0। एक बार इसको और देखिए, मैंने लूप कौन सा लिया बी सी डी बी, दिस इज द लूप बी सी डी बी, ओके। यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए, पाथ का डायरेक्शन ये है, ओके, तो आप यहाँ से देखेंगे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम बी टू सी एंड डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑल्सो उसी के पैरेलल चलेगा, तो बोथ आर सेम, तो पॉजिटिव साइन होगा। तो अब आप रेजिस्टेंस और करंट को मल्टीप्लाई करेंगे, रेजिस्टेंस एंड करंट, करंट इज I1 माइनस IG, रेजिस्टेंस इज Q, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो इस ब्रांच का वोल्टेज आपको मिल जाएगा। इसके बाद में इस ब्रांच में आते हैं, करंट फ्लो हो रही है D to C, I2 प्लस IG इज फ्लोइंग फ्रॉम D to C और पाथ C to D है, बोथ आर अपोजिट, सो माइनस साइन विल बी हियर, रेजिस्टेंस इनटू करंट, टोटल करंट इन दिस ब्रांच, ओके। माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि दोनों डिफरेंट में हैं। अब आते हैं इसमें D to B, देखिए पाथ है D to B ऊपर की तरफ और करंट ऊपर से नीचे की तरफ है, अपोजिट है, तो माइनस साइन यहाँ पे भी आएगा, माइनस IG इंटू G इक्वल्स टू 0। अब बैलेंसिंग कंडीशन, ऑन बैलेंसिंग कंडीशन IG इक्वल्स टू, बट IG क्या होगा 0, क्यों, बैलेंसिंग कंडीशन की हम बात करेंगे, तो IG एंड IG ये 0 कर दें तो दिस विल बी, यहाँ भी 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा Q I1, ये 0 हो जाएगा, माइनस S I2 और ये 0 इक्वल्स टू 0, सो Q I1 इज इक्वल्स टू S I2, नंबर सेकेंड, Q I1 इक्वल्स टू S I2, IG तीनों 0 हो जाएंगे, Q इंटू I1 वो लिख दिया, S इंटू I2 माइनस में S इंटू I2, ये 0 हो जाएगा, दिस 0 ट्रांसफर कर लिया, Q I1 इक्वल्स टू S I2, नंबर 2 इक्वेशन एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ डिवाइडिंग दिस टू इक्वेशन 1 and 2, using 1 and 2, using equation 1 and 2, I1P upon I1Q equals to I2 R upon I2 S, ओके, I2 कैंसिल, I1 कैंसिल, क्या मिलेगा P बाई Q इक्वल्स टू R बाई, दिस इज द कंडीशन, कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या थी कंडीशन, P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S, सेम कंडीशन यहाँ आ रही है।
So by using Kirchhoff's law we can derive the Wheatstone principle. Okay, thank you.